So yes, in today's English class, we are going to start a new topic, pronouns, right? Now, have you ever heard of this word pronounce? Yes? All right, let us see. Right. Now, just tell me one thing. Suppose I want to talk about somebody. I say, I'm talking about Rahul with you, right? I say Rahul is a very good boy. I like Rahul a lot. Rahul helps everyone. So, what is the word that I'm repeating again and again? Now, what is this word, Rahul? It is a noun. It is a naming word, right? So, Rahul is a noun. Now, so if somebody keeps on repeating the same word again and again, एक person या किसी place के बारे में बात कर रहा है और वो बार-बार उस word को repeat कर रहा है, does it sound good? Does it sound good if I say Rahul is a very good boy? I like Rahul. Everybody praises Rahul. Rahul helps me every day. Rahul. So, do you feel fed up? कि आप बार-बार Rahul word को बार-बार क्यों repeat कर रहे हैं हम? So that doesn't look nice. वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, बोलने में भी अच्छा नहीं लगता. If we keep on repeating that same word again and again. Did I ask you to write anything? Leave the pencil and sit straight. So sometimes when we are talking about the same person again and again, or the same word we are using again and again, that doesn't sound good. Are you not well? Yes. Are you not feeling well? You can put your head down. Right? So what we need to do in that case? तो हम क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे अगर हमें लग रहा है कि बार-बार हम उसको word वही use कर रहे हैं तो क्या? What is the option left with us? We can use some other word for him, right? So suppose if I talk about Rahul, Rahul is the name. I'm repeatedly using Rahul. बार-बार Rahul कर रही हूँ. So मैं Rahul की जगह कौन सा word use कर सकती हूँ? Why are we using the word he? Because he is used for a boy, and Rahul is a boy. What is the other word? Right? His. So these are the words that we can use for Rahul. So I said Rahul is a good boy. I like Rahul. Rahul helps me. Everybody likes Rahul. अब मैं इनको दोबारा if I speak these words, so I'll say Rahul is a good boy. I like him. मैं उसको like करती हूँ. So I can say Rahul की जगह I can use the word him. Rahul helps everyone. Rahul सबकी help करता है. वो सबकी help करता है. So we can use the word he helps everyone. So हमने क्या किया है? Rahul जो noun था उसकी जगह कुछ और words use किए हैं क्योंकि हमें बार-बार Rahul का नाम use करना अच्छा नहीं लग रहा है. So ऐसे words जो हम noun की जगह पे use करते हैं, they are called pronouns. What are they called? Pronouns. So if you see pronouns word कैसे बना? Pro plus noun, है ना? ऐसे बना ना? That means अगर आपको कोई confusion होती है तो आप नाम को पढ़ते इस word को पढ़ते समझ सकते हो. Pronoun. That means the words that are used in place of the noun. जो words noun की place पे use होते हैं उन्हें हम बोलते हैं pronouns. Those words are called pronouns. So don't get confused. जैसे ही आपको word come here with the diary as well. So जैसे आप ये word pronouns पढ़ेंगे तो आपको याद आना चाहिए pronouns क्या होते हैं. The words that we use in place of the nouns are called the pronouns. Pronouns. उसके नाम में noun word आ रहा था कि आपको याद आ जाए जो words हम noun की जगह पे use करते हैं उन्हें हम बोलते हैं pronouns. Just a minute. What are pronouns? What are pronouns? The words that we use in place of noun. Okay, can anybody give me an example now? Can anybody give me an example? कैसे हम pronoun use कर सकते हैं? Yes. She is a good girl. She word आपने किसके लिए use किया? पहले बताओ मुझे. Give me a name also.
Okay, Sita is my friend. Sita is a good girl. So Sita is my friend. She is a good girl. मैंने दोबारा सीता वर्ड यूज नहीं किया, मैंने उसकी जगह एक दूसरा वर्ड यूज किया. वो एक अच्छी लड़की है. तो वो जिसे आप हिंदी में वो बोलते हैं. If it is used for a boy, then you use he. अगर वो किसी गर्ल के लिए यूज हो रहा है तो वो क्या वर्ड यूज करते हैं हम? She. मृदुल. Okay. Now come here, Mridul. Mridul has used two sentences, right? So tell me what you do. First, take off your mask and then speak. He is my friend. His name is Ram. Jasonvi. So what is he and Mridul? Don't leave. Better come here. So here, what his name is Ram. So here we have used two pronouns for Ram. What are those words, Mridul? Number What are the pronouns that you have used for Ram here? his And he and his. Can you tell me the difference between the two words? He को हिंदी में क्या बोलते हैं? no, he wo. He means वो. His means Nam उसका. okay. So now his name. Okay. What is it? I'll just clarify what you have said. His name is Rahul. Please look at the board, everyone. He says कि यहाँ पे his जो word है वो pronoun है. As per Mridul correct pronoun है. But can you tell me what is name? Name is it is a noun. So अगर किसी word के बाद में noun आता है, then it is what? Adjective. तो यहाँ पे his क्या है? Possessive adjective है. ठीक है? So here इस sentence में जो first sentence मृदुल ने बताया था, he is Ram. That is correct. He there is a pronoun, but here if we say his name is Rahul, so यहाँ noun आ रहा है and noun के पहले क्या आता है? हमेशा adjective आता है. हमने किए थे ना kinds of adjectives. Possessive adjective किया था हमने. Possessive adjective shows कि किसका है. उसका नाम. किसका नाम? उसका नाम है. So it is being followed by a noun. So it is not a pronoun here. It is an adjective, right? So what is the pronoun here? Is there any pronoun here, beta? Yes. Thank you. She is very polite. So she here is a. He plays cricket very well. Okay. So basically, what I wanted to explain you was what are pronouns. Is this much clear? What are pronouns? The words that we use in place of the noun are called the pronouns. So in your this fourth class, you are having many kinds of pronouns, almost 6. So we'll be doing only 2 today. Let us start with the personal. The first kind of pronoun that we will do is personal pronoun. Okay. For doing this, do you remember we have done 3 kinds of person: first person, second person, third person. Does anybody remember what is first person? The person who is I am speaking now. So if I am speaking, I will be the first person. Who is listening to me? मेरी बात कौन सुन रहा है? आप सारे सुन रहे हैं? So आप सारे you all will be second person. And what are we talking about यहाँ पे? अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं? अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Pronouns के. Pronouns के बारे में बात कर रहे हैं. तो what would be the third person? Pronoun. So the speaker is called the first person. Second person is the listener. And third person. Person word नहीं सोचना हमने. आपने ये नहीं सोचना कि third person है तो कोई person ही होगा. हम किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं. हम किसी सिटी के बारे में बात कर सकते हैं. हम किसी पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं. हम किसी ग्रामर के टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं. किसी भी चीज के बारे में जब हम बात करते हैं, then we call that thing a third person. जैसे अभी हम pronouns के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने ये नहीं सोचना person थोड़ी ना pronoun. But हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं, वो living है, non living है, जो मर्जी चीज है, वो उसे हम क्या बोलते हैं? वो कौन सा person है? Third person. तो ग्रामर में हमने किया 3 kinds of person. अब person वर्ड से बना है personal. Personal किससे बना? Person से बन गया personal. तो personal pronouns वो pronouns होते हैं जो किसी
दो। पर्सनल प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट वी यूज फॉर द पर्सन। अब पर्सन में देखो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या बोला हमने, कौन होता है? स्पीकर। मैं बोल रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन, अगर आप बोलोगे और मैं सुनने लग जाऊंगी तो फर्स्ट पर्सन कौन हो जाएगा? आप हो जाएंगे। और मैं सुन रही हूँ तो मैं कौन सा पर्सन हो जाऊंगी? सेकंड पर्सन, राइट? सो जैसे मैं बोलने लगी मैं फर्स्ट पर्सन बन गई, जैसे आप बोलने लगे आप फर्स्ट पर्सन बन गए। सो whosoever is speaking is called the first person, right? Second person is this one. Third person is who is talked about. वही बता रही हूँ ना, who is talked about, जिस भी बारे में फर्स्ट और सेकंड पर्सन बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है, सेकंड पर्सन जिसके बारे में बात सुन रहा है। सपोज मैं राहुल के बारे में बात कर रही हूँ आपसे, ठीक है, राहुल तो बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपसे बता रही हूँ आई एम द स्पीकर, आई एम द फर्स्ट पर्सन। Get up, both of you. Stand up, Manveer and Vansh. Stand. Stand up, both of you. Stand up, बेटे, नींद खुल जाएगी आपकी खड़े होकर। Yes, very good. If anybody else is also feeling sleepy, you can also stand up. Okay. So second person होता है, मैं आपसे बात कर रही हूँ राहुल के बारे में, तो मैं बोल रही हूँ राहुल के बारे में, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। आप सारे राहुल के बारे में सुन रहे हैं, तो आप सारे क्या हो गए? सेकंड पर्सन। और मैं आपसे किसके बारे में बात कर रही हूँ? राहुल के बारे में, तो थर्ड पर्सन कौन हो गया? राहुल। ओके, सपोज मैं कोई ना मैं दिल्ली होकर आई हूँ, राइट, और मैं आपको दिल्ली के बारे में बता रही हूँ, दिल्ली में ऐसा होता है, दिल्ली में ऐसा होता है, तो मैं हो गई फर्स्ट पर्सन। आप सारे क्या हो गए? किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं? दिल्ली के बारे में बात कर रही हूँ, दिल्ली विल बी द थर्ड पर्सन। सो पर्सन का मतलब ये नहीं सोचना कि वो थर्ड पर्सन में पर्सन ही होगा। थर्ड पर्सन जिस भी बारे में बात हो रही है, ठीक है, मैं सपोज अपने पेन के बारे में बता रही हूँ, ये पेन मैंने शॉप से लिया था, 10 रुपीज का लिया था, तो यहाँ पे मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ? पेन। तो मेरा यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन हो गया? पेन। क्लियर है? जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा होता है ना लिसनर से, वो हो जाती है, वो चीज हो जाती है थर्ड पर्सन। क्लियर है? ओके, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं अपने लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकती हूँ? क्या मैं अपना, एक मिनट, क्या मैं अपना नाम लेती हूँ? क्या मैं बोलती हूँ श्रेय? मैं क्या बोलती हूँ? आई। सो स्पीकर अपने लिए कौन सा वाला प्रोनाउन यूज कर सकता है? आई। ठीक है, अगर मेरे साथ एक और टीचर है, दो टीचर्स खड़े होकर बोल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? आई का प्लूरल क्या होता है? ठीक है, अगर मैंने बोला ये तो क्या, आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, ठीक है, यू कैन कॉल मी, तुम मुझे बुला सकते हो, मी विड बी आई का मी, मी भी मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ ना, इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन दैट द फर्स्ट पर्सन यूज करता है। अगर वही होगा तो उसमें चलेगा अस। तो ये 4 वर्ड्स आपने याद करने हैं जो स्पीकर अपने लिए यूज कर सकता है। मैं अपने लिए आई वर्ड भी यूज कर सकती हूँ, मी वर्ड भी यूज कर सकती हूँ। अगर मेरे साथ और लोग हैं तो हम अपने लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? वी या फिर अस, राइट? नेक्स्ट, सेकंड पर्सन कौन होता है? जो मेरी बात सुन रहा है। अगर सपोज मैं क्लास में मृदुल को कहती हूँ, मृदुल आर यू लिसनिंग टू मी, तो मैंने मृदुल के लिए क्या यू वर्ड यूज किया? यू। ठीक है, यू कौन हो गया? मृदुल वन बॉय है, तो मैंने इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया? यू। अब मैं सारी क्लास में कहती हूँ यू ऑल स्टैंड अप, तो मैंने आप सबके लिए कौन सा वर्ड यूज किया? यू वर्ड यूज किया ना। सो यू वर्ड क्या होता है? किसी वन के पर्सन के साथ भी यू यूज होता है और मोर देन वन के साथ भी यू ही यूज होता है। अगर मेरे को एक बच्चे को बुलाना है तब भी मैं उसको कहूंगी यू कम हियर, अगर मुझे 5 बच्चों को बुलाना है तब भी मैं कहूंगी यू कम हियर। सो क्या डिफरेंस है दोनों में? नो। यू जो है वो सेकंड पर्सन भी यूज होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, और वो सिंगुलर हो या वन से ज्यादा हो, सबके साथ एक ही वर्ड यूज होता है। कौन सा वर्ड? यू। क्लियर? सेकंड पर्सन के लिए सिर्फ एक ही वर्ड यूज होता है, कौन सा वर्ड? यू। Now let us talk about the third person. Third person में suppose अगर मैंने सिर्फ राहुल के बारे में बात की, तो राहुल के लिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर सकती हूँ? he and him. वो क्या है? बॉय है राहुल, तो मैं इसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकती हूँ? he या him. अगर मैं सीता के बारे में बात कर रही हूँ तो she और her. अगर मैं राम
सीता दोनों के बारे में बात कर रही हो तो two persons है. Suppose okay fine. I'm talking about suppose Gitang. So Gitang के लिए मैंने कौन कौन से word use करने हैं? He's a naughty boy, but I like him, right? So मैंने उसके लिए कौन कौन से words use किए? He and him, right? Then if I talk about some girl in a class, suppose I talk about Bhumi. So Bhumi, if I say she's a sincere girl, I like her. So Bhumi के लिए मैंने कौन कौन से pronouns use किए? She and her. Now if I talk about say okay, I'm talking about some students of class of section blue, suppose. Okay, I'm talking about Dipansha and Vinay. They both are in 4th blue class, right? So वो दोनों के लिए मैं उन दोनों की बात कर रही हूँ. मैं कहती हूँ Vinay and Dipansha are very sincere students. They listen to me carefully. So उन दोनों के लिए मैंने कौन सा pronoun use किया? They. So they pronoun में किसके लिए use करते हैं हम? जब one से ज्यादा लोग होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या use करते हैं? They. And they के साथ दूसरा word कौन सा होता है? Them. They are sincere students. Dipansha and Vinay are sincere students. I like them. So उसके लिए क्या आएगा? They का them. He means वो boy. Him means उस boy को, उसको. बोलते ना I like him. मैं उसको like करती हूँ. She means वो वाली girl. I like her. मैं उसको like करती हूँ. उसको ही है दोनों का मतलब. हिंदी में दोनों का मतलब उसको है. पर boy है तो him, girl है तो her. अगर बहुत सारे लोग हैं तो they are good students. I like them. Right? So them means उनको. सिंगुलर है बॉय है हिम, सिंगुलर है गर्ल है हर. तो एक से ज्यादा है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, कोई भी है, सबके लिए क्या यूज होगा? और अगर नॉन लिविंग है फिर उसके लिए क्या यूज होता है? नॉन लिविंग या एनिमल्स का वन होता है तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? इट. सो ये पर्सनल प्रोनाउंस आपने याद कर लेने हैं. फर्स्ट पर्सन के लिए कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन आते हैं? आई एंड मी. ठीक है, अब मैं सेंटेंस लेती हूँ. I am a teacher. All the children like me. So मैं, I मेरा एक pronoun हो गया. मुझे, me means मुझे. सब बच्चे मुझे like करते हैं. me. ठीक है? We are going for a party. My father is taking us. हम पार्टी में जा रहे हैं. We मतलब हम पार्टी में जा रहे हैं और हमारे फादर हमें us means हमें. Me means मुझे. us means हमें. एक से ज्यादा होगा तो क्या बोलेंगे? us. वन पर्सन होगा तो अपने लिए क्या बोलेगा? me, मुझे. राइट? यू आपको पता चलेगा सिंगुलर आप सारे यू हैं. अकेले एक बच्चे का नाम लूंगी तब भी वो यू है. अगर मैं सबके लिए यूज करूंगी तब भी मैं क्या यूज करूंगी? यू. फॉर बॉयज he, him. राइट? फॉर गर्ल्स she and her. फॉर प्लूरल more than one, they and them. And it कहाँ यूज करना है हमने? For non-living thing or for animal, that is one in number. So all these words आपने by heart learn कर लेने हैं. सारे words किसमें आते हैं? Personal pronouns. अगर आपको याद कैसे रखना है ये personal pronouns? Person. जो person के यूज होते हैं वो personal pronouns है. कौन से person याद करने हैं फटाफट से? First person, second person, third person. So जो pronouns persons के यूज होते हैं वो कौन से हो गए? Personal pronouns. First person के लिए कौन कौन से होंगे? I, we, me, us. Second person के लिए you. Third person के लिए he, him, she, her, they, them and it. Clear? ये सारे के सारे pronouns कौन से pronouns हो गए हमारे? Personal pronouns. Clear है? Is this clear? Personal pronouns bete? Online students, you also tell quickly bete. But second kind of pronoun that we are going to do is demonstrative. Do you remember demonstrative adjectives? किसने बच्चों को याद है demonstrative adjectives? You just want to wait. Yes, खड़े होकर बोलिए. Yes. Yes. जो वर्ड्स डेमोन्स्ट्रेट करने का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको? किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना. कौन से वर्ड से पॉइंट आउट करोगे? दैट
is a very nice fan. ठीक है, this is a costly pen. तो मैं किसी चीज के लिए पॉइंट आउट करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करती हूँ? अगर वो सिंगुलर है तो this, अगर वो मुझसे दूर है तो that, अगर वो one से ज्यादा है तो these, one से ज्यादा दूर है मेरे से तो those and such. Right? This is a chart. ठीक है? If I have suppose two in my hands, one है तो this is a chalk मेरे पास है और one है. These are chalks मेरे पास है और more than one है तो this की जगह क्या यूज होगा? Those. Sorry, these, right? अगर मैं suppose उस फैन के बारे में बात करूँ जो मुझसे दूर है तो मैं बोलूँगी इसके लिए क्या वर्ड यूज करूँगी? That. अगर मैं उन दोनों फैंस के बारे में बात करूँ जो मुझसे दूर है तो those, right? So this and that दोनों one के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए these and those यूज होते हैं more than one के लिए. Such means अब मैं आपको बोलती हूँ I don't like such students. मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है. तो मैं किसी की तरफ पॉइंट आउट करके बोल रही हूँ ना. सपोज कोई बच्चा कुछ नॉटी है, वो कहना नहीं मान रहा है, तो मैंने उसको पॉइंट आउट किया कि why you are doing this. Then I say I don't like such students. मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं है. So मैंने उन बच्चों की तरफ, पर्टिकुलर बच्चों की तरफ इशारा किया, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, उनको दिखाया सबको. So such word is also a demonstrative word. ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है. मैंने आपको पहले भी समझाया था कि डेमोन्स्ट्रेटिव, इन्हें आपने एकदम से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस नहीं लर्न कर लेना. इन्हें क्या बोलना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स है. कौन से वर्ड्स को डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहेंगे? जो किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं. बट अगर इन वर्ड्स के पीछे नाउन आ रहा है, that pen is dirty, सबसे पहले देखो कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है इसमें. Yes, what is the demonstrative word here? That. अब next step आपने देखना कि क्या इसके पीछे कोई noun तो नहीं आ रहा. Can is a noun. तो क्या ये demonstrative जो word है वो adjective बना या pronoun बना? Adjective. Why? क्योंकि इसके पीछे क्या आता है? Noun. अगर किसी demonstrative word के साथ noun लग जाता है तो वो क्या बन जाता है? Demonstrative adjective बन जाता है. लेकिन आज हमने क्या करने हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस करने हैं. तो आई टेक द सेम दैट इज अ डर्टी पेन. नाउ लुक हियर अगेन, दैट वर्ड आ गया, मेरा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड आ गया. मैंने इतना देख के पहचान लिया कि तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है. बट अब मुझे ये देना कि क्या मेरा ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है. नाउ मैं नेक्स्ट वर्ड देखूंगी. नेक्स्ट वर्ड का नाउन है? नो. क्या है नेक्स्ट वर्ड? वर्ब है ना. हेल्पिंग हो या कोई भी वर्ब है ना ये. तो अगर हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड से नेक्स्ट वर्ड कोई वर्ब है, नाउन नहीं है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव. उसका क्या लग जाएगा? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा. इट इज डेमोन्स्ट्रेटिव. सेम वर्ड जो है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, दैट वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है और प्रोनाउन भी. हम कैसे जज करेंगे? अगर उसके बाद नाउन आ रहा होगा तो हम उसे क्या मानेंगे कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. अगर उसके बाद नाउन नहीं आ रहा, वर्ब आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाएगा. क्लियर? लेट अस टेक अ फ्यू मोर एग्जांपल. Who is unmuted today? Yes. Now tell me, I have given here two sentences. Raise your hands quietly and tell me where is demonstrative. In which sentence have we used the demonstrative adjective? In which sentence demonstrative adjective is used? Raise your hands. In wait in those both in
in both the sentences we have used the word those. दोनों में हमने those use किया है. My question is, in which of the sentences is it used as an adjective? No. In none of the sentences, Bhumi? किसी में भी नहीं हुआ. How many if we say in both the sentences there is no adjective here, no demonstrative adjective here? I have written the same sentence twice, haven't I? Aren't the same? Yes, they are the same, of course. And in both, hands down please. And in both the sentences, demonstrative words are there, but they are not followed by a noun. लेकिन उन demonstrative words के साथ noun किसी में भी नहीं आ रहा है. So how can they be an adjective? These both are, दोनों ही sentences same है और दोनों में demonstrative pronouns आ रहे हैं. Why? Because यहाँ पे next word जो है दोनों में same word है. And what is the word? That is a verb. So demonstrative word के बाद verb आ रहा हो तो वहां पे वो adjective नहीं बनते हैं. अगर both my sentences have been, those kids are naughty. Now here, after the word those, the word that we have is kids. And kids is a so here those will be demonstrative adjective. रेशमा मासी याद करती बड़ी है